یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سعید تجمل قادری. پہلے ہیڈ لائنز. وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے ہر ایک خطے کو سب کا ساتھ سب کا وکاس نظریے کے تحت ترقی یافتہ بنانے کا دلائے یقین. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آپریشن سندور کے دوران میک ان انڈیا پہل کی اہمیت کو کیا اجاگر. ملک میں زرعی سیکٹر کو تقویت بخشنے کے لیے آج سے 15 روزہ وکست کرشی سنکلپ ابھیان کا آغاز. اور کئی اہم شخصیات راج بھون سری نگر میں ایل جی منوج سنہا سے ملاقات. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سکم اور پورا شمال مشرقی خطہ ملک کی ترقی کے درخشندہ ستارے کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا ہے. آج سکم ایٹ 50 تقریب سے ورچوئل طریقے پر خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس نظریے کے تحت ہر ایک ریاست اور خطے کو ترقی یافتہ بنانا لازمی ہے تاکہ وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا جا سکے. انہوں نے آپریشن سندور کی کامیابیوں کا بھی ذکر کیا. ٹورزم صرف منورنجن نہیں ہے، یہ ڈائیورسٹی کا سیلیبریشن بھی ہے. لیکن آتنکیوں نے جو کچھ پہلگام میں کیا وہ صرف بھارتیوں پر حملہ نہیں تھا، وہ مانوتا کی آتما پر حملہ تھا، بھائی چارے کی بھاونا پر حملہ تھا. لیکن آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم نے آتنکیوں کو آپریشن سندور سے کرارا جواب دیا ہے اور ہم نے ان کے کئی ایئر بیس کو تباہ کر کے دکھا دیا. آج بعد دوپہر وزیر اعظم نے مغربی بنگال کا دورہ کیا اور وہاں پر کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، ساتھیوں، 21ویں صدی میں بھارت نئے سامرتھ کے ساتھ سمردھی کی نئی گاتھا لکھ رہا ہے. آج دیش کا ہر ناگرک بھارت کو وکست راشٹر بنانے کے لیے جٹا ہے، دن رات جٹا ہے. اور وکست بھارت بنانے کے لیے پشچم بنگال کا بھی وکست ہونا بہت ضروری ہے. دریں اثنا وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سپہر بہار کا بھی دورہ کیا اور وہاں ہزاروں کروڑ روپے لاگت والے ترقیاتی پروجیکٹوں کو قوم کے نام وقف کیا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ میک ان انڈیا پہل قومی سلامتی کا ایک اہم جز ہے اور اس نے آپریشن سندور کے دوران دہشت پسندی کے خلاف بھارت کی مؤثر کارروائی کو یقینی بنانے میں اہم رول ادا کیا. نئی دلی میں آج CII سالانہ بزنس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب جب بھی پاکستان کے ساتھ بات چیت ہوگی وہ صرف دہشت پسندی کے معاملے اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر پر ہوگی. آتنکواد کا کاروبار چلانا کاسٹ افیکٹو نہیں ہے بلکہ اس کی ایک بھاری قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے. اس کا انمان آج پاکستان کو ہو چکا ہے. ہم نے آتنکواد کے خلاف بھارت کی اسٹریٹجی اور ریسپانس دونوں کو ری ڈیزائن اور ری ڈیفائن کیا ہے. ہم نے پاکستان کے ساتھ اپنے انگیجمنٹ اور اسکوپ آف ڈائیلاگ کو ری کیلیبریٹ کیا ہے. اب جب بھی بات ہوگی کیول آتنکواد پر بات ہوگی، POK پر بات ہوگی. وزارت خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت پر بھارت کا موقف بالکل واضح ہے. آج نئی دلی میں خارجہ وزارت کے ترجمان رندھیر جائسوال نے ایک میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ دہشت پسندی اور بات چیت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. انہوں نے کہا، جہاں تک آتنکواد کا سوال ہے اس پہ بات اس مدے پہ ہوگی ایک پاکستان سے کہ جو ہم لوگوں نے ان آتنکیوں کا سوچی جو دیا تھا ان کو کچھ سال پہلے ان کو ہمارے حوالے کرے. اور جہاں تک جموں کشمیر کا سوال ہے اس پہ دوپکشیہ روپ سے ہی بات ہوگی. وہ صرف اور صرف اس بات پہ ہوگی کہ پاکستان ادھیکرت کشمیر کب وہ خالی کرے گا اپنا اویدھ طریقے سے اس پہ جو قبضہ ہے اس کو. آپریشن سندور کی کامیابی پر قوم ہتھیار بند فوج کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے. آکاشوانی نیوز نے بھی بہادر فوجی جوانوں کو خراج پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے. آج ہم پرم ویر چکر ایوارڈ یافتہ میجر دھن سنگھ تھاپا کو یاد کر رہے ہیں. پیش آکاشوانی دلی کے نمائندے کی یہ رپورٹ. 1962 کی بھارت چین جنگ کے دوران انہوں نے لداخ میں پینگانگ جھیل کے قریب چوشول ہوائی اڈے کے اہم ترین علاقے سریجب کی اہمیت کی حامل اہم چوکی کے دفاع کی ذمہ داری سنبھالی. دشمن کے 2 لگاتار حملوں کے باوجود میجر تھاپا اور ان کے جوانوں نے دشمن کو پسپا کر دیا. دشمن کو شدید جانی نقصان پہنچایا.
टैंकों से तीसरा शदीद हमला होने पर गोली बारूद और कम नफरी के बावजूद उनकी प्लाटून ने मुजाहिमत जारी रखी। बिलाखिर जब सिरिजब की चौकी तबाह हो गई तब मेजर थापा अपनी खंदक से बाहर निकले और पकड़े जाने से पहले आमने सामने की शदीद लड़ाई लड़ी। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। 77वें यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स दिन के मौके पर आज नई दिल्ली के कौमी वॉर मेमोरियल पर तकरीब मुनक्किद हुई, जिस दौरान डिप्टी चीफ ऑफ आर्म्ड स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर ने दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशनों में भारत के उन बहादुर फौजियों को खराज अक़ीदत अदा किया जिन्होंने अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान जानों की कुर्बानियां पेश की। मुल्क में ज़री शोबे को फ़रोग देने, फसलों की पैदावार बढ़ाने, नीज़ किसानों के मयार हयात में बेहतरी लाने की गर्ज से आज से विकसित कृषि संकल्प अभियान का आगाज़ हुआ। 12 जून तक जारी रहने वाली इस कौमी सतह की मुहिम के दौरान किसानों को काश्तकारी के जदीद तरीक़ों और आला पैदावार देने वाले बीजों की इफ़ादियत के बारे में रोशनास किया जाएगा। मुल्क भर के साथ साथ इस हवाले से जम्मू कश्मीर में भी मुतादिद प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज कश्मीर में आज विकसित कृषि संकल्प यात्रा का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत वदीही तरक्की जावेद अहमद डार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ज़राअत शैलेंद्र कुमार, डीडीसी श्रीनगर के चेयरपर्सन अल्ताफ मलिक, एमएलए हजरतबल सलमान सागर, ज़री यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई, डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रिहाना हबीब कंठ और कई दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। बाद में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए जावेद अहमद डार ने कहा, 900 करीब हमारी टीमें लगी है जो पूरी यूटी को इस वक्त इस अभियान का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी एडवांसमेंट ही है किसान के डोर स्टेप तक पहुंचना चाहिए, इसका मकसद यही है। और आईसीआर को ये मैंडेट दिया गया है कि वो कश्मीर यूनिवर्सिटी और स्कॉच यूनिवर्सिटी जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स है, रिसर्चर्स है, साइंटिस्ट है, विद अलाइड सेक्टर्स जितने भी हमारे ऑफिसर्स है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जो लाइन ऑफिसर्स हमारे हैं, उनके साथ बैठ के हर डिस्ट्रिक्ट में जाए और कोशिश होगी हर एरिया को हम लोग कवर करें। उन एरियाज को जहाँ पर हमारे किसान है उनको अभियान के बारे में बताएं। एग्रीकल्चर और हमारे यूनिवर्सिटी के जो ऑफिसर्स है हर जगह इस वक्त गए हुए हैं और जहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स है, चाहे वो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, चाहे वो एचएडीपी के हो, चाहे वो जेकेसिप हो, या जो और भी हमारी स्कीम्स होती है एग्रीकल्चर में, उन स्कीम्स के बारे में उनको जानकारी दे दें ताकि वो जानकारी जो है ग्रास रूट पे इस्तेमाल करें और अपनी पैदावार में बेहतरी करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जिससे उनकी उन्नति हो जाएगी, प्रोग्रेस बन जाएगी। गुवाहाटी से ताल्लुक रखने वाले एक सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर अश्मिता पॉल ने आज राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल को तक़वियत बख्शने के लिए इन दिनों गुवाहाटी से कश्मीर और फिर कश्मीर से कन्याकुमारी का सफर 2 व्हीलर पर तय कर रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अश्मिता पॉल को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनकी इस कोशिश से लड़कियों की तालीम और उनकी बाइख्तियारी से मुतल्लिक बेदारी आम करने में मदद मिलेगी। दरियासना टीम जम्मू एक समाजी तंजीम के चेयरमैन जोरावर सिंह जामवाल ने भी राजभवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने आज उधमपुर का दौरा करके बेली में तामीर हो रहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने अमलावरी एजेंसियों को हिदायत दी कि वो प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए काम में तेजी लाएं। किश्तवाड़ पुलिस ने समाज मुखालिफ और कौम मुखालिफ सरगर्मियों की पादाश में 2 अफराद के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मामलात दर्ज किए हैं। सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने कहा कि महकमा सेहत कोविड-19 सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस हवाले से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, इसमें कोई ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो ऑलरेडी उन्होंने अपनी तैयारी जो है वो करके रखी है और हेल्थ डिपार्टमेंट हर वक्त तैयार रहता ही रहता है, क्योंकि खुदा न खास्ता कभी भी कोई जो है इशू अगर सामने आता है तो हेल्थ डिपार्टमेंट हर वक्त तैयार, लेकिन अपने लेवल पे जो प्रिकॉशंस है वो ज़रूर लेने चाहिए। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथिर ने ऐवान का कामकाज अहसन तरीके पर चलाने के लिए मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दी हैं, जिनमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी, प्रिविलेज्ड कमेटी, पटिशंस कमेटी, एथिक्स कमेटी, माहौलियात से मुतल्लिक कमेटी और गवर्नमेंट एश्योरेंस कमेटी शामिल है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम, मुझे विश्वास है कि यह आंदोलन हमारे देश को नशा मुक्त बनाने के हमारे संकल्प को मजबूत करेगा। से नो टू ड्रग्स।
जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए दरकार इकदामात के ज़िम्न में एक सहाफ़ी मुज़फ़्फ़र अहमद खान ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर से बात करते हुए कहा, हमें चाहिए कि इज्जत शहरी, ट्रेडर्स, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी मसाजिद सब इकट्ठे होकर इसके खिलाफ उठ खड़े हो जाएं ताकि इसको समाज से खत्म किया जाए। इसमें कुछ बेज़मीर लोग दौलत की हवस की वजह से उन्होंने कश्मीर के नौजवान पौध को इस मंशियात में मुलवस करा दिया है, जिससे हमारा मुस्तकबिल बहुत खतरे में लग रहा है। 1-2 सालों से पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की है। सबको मिलजुल के इसका साथ दे के मंशियात मुक्त कश्मीर को बनाना होगा। इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने ज़िलहिज्जा का आज से आगाज़ हो गया है। इस महीने में फ़र्जंदान तौहीद हज का फ़रीज़ा अदा करते हैं। ये मुबारक महीना शुरू होने पर जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का यूं इजहार किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह ने अपने किरदार के ज़रिए तस्लीम और रज़ा की एक ऐसी रिवायत कायम कर दी जिसका तसव्वुर इंसान नहीं कर सकता है। तकवा और तवक्कुल का नाम अज़मती इंसान है, जिसको कामयाब तरीके से कुर्बानी पे अमल पैरा होकर पिदर व पिसर ने अंजाम दे दिया। ये मुतबर्रक अय्याम हमें अल्लाह से ताल्लुक कायम करने का पैगाम देते हैं। तकवा की अज़मत का पैगाम इन जैसे अय्याम से हमें मिलता है जो इंसानियत की सरबुलंदी का दर्स देते हैं। श्रीनगर से सफ़र महमूद पर आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी है। कल भी 2 परवाज़ों के ज़रिए आज़मीन हज बैतुल्लाह पर रवाना हो रहे हैं। कल के शेड्यूल के बारे में जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, कल इंशाल्लाह 636 हुज्जाज किराम यहाँ से रवाना होंगे। 2 फ्लाइट होंगी। पहली फ्लाइट के जो हुज्जाज हैं उनको 6 बजे यहाँ रिपोर्ट करना है, सुबह 6 बजे, और दूसरी फ्लाइट की जो है उन्हें 12 बजे हज हाउस रिपोर्ट करना है। इन हुज्जाज किराम को डायरेक्ट मक्का जाना होगा जिद्दा से होके, तो इन्हें एहराम और चप्पल जो है वो हैंड बैग में रखनी है। ये इंशाल्लाह फ्लाइट जो है वो श्रीनगर से डायरेक्ट जिद्दा जाएगी। एहराम इन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट पर ही बांधना है। एहराम की नीयत इंशाल्लाह ये जहाज में करेंगे। मरकजी सरकार 3 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में यात्रा रूटों और मुल्क इलाकों में नीम फौजी दस्तों की 581 कंपनियां तैनात कर रही है। रिलीफ और बाज़ाबादकारी के कमिश्नर डॉक्टर अरविंद कारवानी ने आज 3 जून को मुनक्कद होने वाले माता खीर भवानी मेले के सिलसिले में इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने गांदरबल, कुलगाम, अनंतनाग और कुपवाड़ा की इंतज़ामिया को हिदायत दी कि वो श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की बुनियादी सहूलियात दस्तियाब रखें ताकि उन्हें पवित्र स्थापनों पर किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ट्रैफिक निज़ाम में माकूलियत लाने, नीज़ सड़क हादसात के दौरान कीमती जानों के ज़िया पर काबू पाने के लिए लगातार इख्तिराई इक़दामात कर रही है और इंतजामिया की तरफ से ज़िम्न में रहनुमा खतूत और मशावरतें जारी की जाती है। जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पॉल महाजन ने इस हवाले से आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जिसकी उम्र 18 साल नहीं हुई है और जिसने लाइसेंस नहीं लिया, ना ही वो कोई गाड़ी ना ही कोई स्कूटी मोटरसाइकिल चलाए, क्योंकि ये पूर्ण रूप से वर्जित है, ये डिसअलाउड है, ये नहीं चला। जहां तक सीट बेल्ट की बात है, सीट बेल्ट ड्राइवर को तो पहनाना ही है, कंपलसरी है, लेकिन अब जो लेटेस्ट गाड़ियां आ रही हैं उनमें बैक सीट्स के भी सीट बेल्ट है, वो भी पहनना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि सीट बेल्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी ब्रेकिंग, इन केस ऑफ कोलिजन या इन केस ऑफ मिसहैप ऑन द रोड आपको प्रोटेक्ट करता है। अब तो जो नई गाड़ियां लेटेस्ट आ रही हैं उनमें तो आपके एयर बैग जो है मल्टीपल जगह पे हैं, तो वो हेल्प करते हैं। अगर सीट बेल्ट नहीं पहना है तो याद रखिए एयर बैग एक्टिवेट नहीं होता है। जब एयर बैग एक्टिवेट नहीं होता है तो इंजरीज काफी शदीद भी हो जाती हैं और इंजरीज कई बार फेटल भी हो जाती है। सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक वफद आज श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात हुआ। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के अलावा दीगर अमूर पर भी तबादले ख्याल किया। दरियासना पार्टी के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने सयाहत के शोबे को बहाल करने के लिए मुत्तहिद होकर कोशिशें करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी और MLA अरविंद गुप्ता ने आज त्रिकोटा नगर जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक अवामी दरबार का इनेकाद किया। इस दौरान उन्होंने लोगों के मसाइल सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि उजागर किए गए तमाम मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
अरुण पोले की सदारत में आज कोर्ट की जम्मू शाख में एक फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिस दौरान कई वकला की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया गया। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर अपने ताज़ियती खुतबे के दौरान कानून के शोबे में इन वकला के रोल और खिदमात को उजागर किया। प्रसार भारती शब्द एक ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए से मुल्क के कंटेंट क्रिएटर्स को मुख्तलिफ सूरतों में मवाद और जानकारी फराहम की जाती है। शब्द से इस्तेफादा करने वालों सहाफ़ियों और क्रिएटर्स की तादाद 1700 से तजावुज कर गई है। शब्द मुल्क की 13 ज़बानों के 50 से ज़ायद ज़ुमरों में मुतलकीन को मवाद दस्तियाब कराता है। प्रसार भारती ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर मुतलकीन से कहा है कि वो फोटोग्राफ्स, वीडियोज़, इन्फोग्राफिक्स और दीगर खबरों के लिए शब्द.prasarbharati.org पर लॉग ऑन कर सकते हैं। मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान चंद एक मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 28.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 15.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:21 पर और गरूब आफ्ताब शाम 7:36 पर होगा। खबरों के इख्तिताम से पहले सुर्खियों पर फिर एक नज़र। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के हर एक खित्ते को सबका साथ सबका विकास नज़रिए के तहत तरक्की याफ्ता बनाने का दिलाया यकीन। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेक इन इंडिया पहल की अहमियत को किया उजागर। मुल्क में ज़री सेक्टर को तक़वियत बख्शने के लिए आज से 15 रोज़ा विकसित कृषि संकल्प अभियान का आगाज़ और कई अहम शख्सियात राजभवन श्रीनगर में LG मनोज सिन्हा से मुलाकात। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।